Good evening, ladies and gentlemen. Jai Hind. Welcome to this second special press conference on Operation Sindoor. Like yesterday, we'll have the opening statements by the three senior officers who are here with me. You all know them well now. However, for those who were not here yesterday, let me introduce you to them. In the middle, we have Air Marshal A.K. Bharti, Director General Air Operations, who will provide insights on the air domain. To his right is Lieutenant General Rajiv Ghai, Director General Military Operations. He will cover the land aspects. And to my immediate right is Vice Admiral A.N. Pramod, the Director General Naval Operations. Following these briefings, we will be having a few question and answers. May I now request the DG Air Operations to commence the proceedings. Gentlemen, yesterday we had a detailed brief on the successful joint operations that were carried out to destroy the terror infrastructure in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, as well as in Pakistan itself. We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorist, which compelled us to respond in kind. दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ, वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। This brings me to the point, how have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? Most of you and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force. As you all are well aware, this robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems, from point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired manpads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer-range surface-to-air missiles within our inventory. Additionally, the numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter-US systems and the well-trained Indian air defense personnel. All this was brought together as an efficient and effective AD environment by the integrated
Air Command and Control System, or the ISCCS of the Indian Air Force, which accords us the net-centric operational capability which is vital to modern days war fighting. While much has been said and written about the newer systems, I would like to place on record the performance and efficacy demonstrated by even the older battle-proven AD systems like the Pechora, the OSA AK and the LLAD guns in countering the Pakistani threat vectors in the current operations. They were all modern generations, but these battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Here, ladies and gentlemen, I would like to mention that putting together an operationalization of this potent AD environment has been possible over the last decade due to unwavering budgetary and policy support provided by the Government of India in acquiring state-of-the-art equipment and weapon systems. Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is a probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. As far as our offensive actions are concerned, yesterday I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, two of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. So with that, giving you an overview of how our air defense systems have thwarted the enemy drones, their fighter aircraft, their missiles, and resulted in minimal losses on our side. I would now hand over to the DGMO. So with that, giving you an overview of how our air defense systems have thwarted the enemy drones, their fighter aircraft, their missiles, and resulted in minimal losses on our side. I would now hand over to the DGMO to cover his portion. के बारे में
आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। हमें एयर डिफेंस, ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे, हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है। और मैं आपको इस उदाहरण के जरिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूं। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा।
जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहां पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनार्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। In the end, I would like to highlight again that in every single domain that Operation Sindoor has been prosecuted, there has been absolute synergy between the three services. Not only have we, in this endeavor, been fully supported by our government, departments, and agencies, I cannot here not mention our 140 crore countrymen that have stood behind us with their prayers and goodwill, urging and inspiring us to achieve our mission and objectives. For that, we salute you. You are indeed the best. Jai Hind. Good afternoon, ladies and gentlemen. To talk about the air defense capability, the Indian Navy operates as a composite network force capable of simultaneously addressing threats emanating from all domains, that is, air, surface and subsurface, through amalgamation of advanced sensors synchronized on the combat management systems. In effect, the maritime force is able to ensure persistent surveillance, detection and identification for a comprehensive maritime domain awareness, including the airspace. Effectively using multiple sensors and inputs, we are maintaining continuous surveillance to degrade or neutralize threats as they emerge or manifest, to ensure targeting at extended ranges. All these are conducted under the umbrella of a comprehensive and effective layered fleet air defense mechanism that caters for all threats, be it drones or high-speed missiles or aircraft, both fighters as well as surveillance aircraft. The fleet operates as a composite force, maintaining a surveillance bubble at extended ranges using advanced radars. Any aerial target that attempts to penetrate this bubble is detected and identified using various techniques and technologies, affording quick and clear distinction between commercial, neutral, and hostile aircraft or flying objects at ranges in excess of the anticipated attack range. The Carrier Battle Group, with its integral air wing, provides the first layer of this layered mechanism. Adequately equipped and trained to high degree of proficiency, our pilots are able to operate both by day and night. In the current standoff, the presence of our aircraft carrier with large number of MiG-29K fighters and airborne early warning helicopters prevented any suspicious or hostile aircraft to close the Carrier Battle Group within several hundred kilometers. अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया. Over the past few years, and most importantly,
immediately after the cowardly incident by Pakistani-sponsored terrorist attack at Pahalgam, we had validated our anti-missile and anti-aircraft defense capability in a complex threat environment using cross-platform cooperative mechanism. Our powerful carrier battle group with formidable offensive capability was able to operate with impunity and maintained an uncontested presence in the area of operations. Effectively, it compelled the Pakistani air elements to remain bottled up close to the Makran coast, denying any opportunity to be a threat in maritime space. The Indian Navy maintains a credible capability to detect, identify, and neutralize any aerial platforms that threaten our units at sea. To sum up, the Indian Navy's dominance thus ensured that, should we choose to, we can strike at will. Thank you, Shamdo Varna, Jai Hind. May I now hand over to Director General Air Operations for further proceedings. Thank you, Pramod. I think a lot has been said, and I would only end by saying and emphatically state that all our military bases, all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions should the need so arise. और अंत में यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। शुक्रिया दोस्तों, और यदि कोई अभी क्वेश्चंस हैं तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए। Just a second, ladies and gentlemen. Like yesterday, I'll request you to raise your placards, which most of you are doing. Again, repeating it, anything which is confidential in nature will not be responded to. And as you are aware, the DGMOs, all three of them, have got an important assignment after this, which you also are very well aware of. So we shall not be taking too many questions today. I started with both the ends yesterday. Today I'll start from the center, 237. 237. And I'll request you to please maintain, I'll ask you, I'll come to you. हेलो हेलो सर, मैं आवाज आ रही मेरी? हेलो सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज नेशन से आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने के ठीक पहले एक वीडियो हमने स्क्रीन पर देखा जिसमें राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी कृष्ण की चेतावनी की प्रमुख पंक्तियों को उद्धृत किया गया और सीधे सीधे दुश्मन को संदेश दिया गया कि याचना नहीं। मधुरेंद्र, मैं न्यूज नेशन से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के ठीक पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जो कृष्ण की चेतावनी है उन पंक्तियों को सामने रखा गया और कहा गया कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। कल शिव तांडव स्त्रोत के जरिए दुश्मन को संदेश दिया गया था और आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन प्रमुख पंक्तियों के जरिए ये किस तरह के डिटरेंट को क्रिएट किया जा रहा है, किस तरह के मैसेज को दिया जा रहा है, इसको थोड़ा इलोबरेट करके अगर आप बताएं तो जाहिर तौर पर ये संदेश और व्यापक तौर पर जाएगा। और एक छोटा सा सवाल मेरा यह है कि ड्रोन अटैक को लेकर जो बातें सामने निकल कर आई हैं, एक बहुत हाइप क्रिएट था टर्किश ड्रोन को लेकर, TB2 और उसके तमाम ड्रोन को लेकर। ऐसा लगता है कि वो हाइप और ओवररेटेड ड्रोन जो है वो भारत में धराशायी हो गया, एक मैसेज दुनिया को चला गया कि अब हाइब्रिड वॉरफेयर में इसकी औकात नहीं बची है। ओके, ऑल राइट, ओके, थैंक यू। आपने क्या नाम बताया अपना और किस एजेंसी से हैं? न्यूज नेशन से। बहुत अच्छा लगा आपकी हिंदी सुनकर और हिंदी कविता सुनकर। तो मेरे कलीग ने अभी बताया, आई थिंक आई मेंशन्ड यीहा टू बी ऑफ चाइनीज ओरिजिन। आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, द यीहा ड्रोन्स आर ऑफ टर्किश ओरिजिन, सो दैट कम्स टू योर क्वेश्चन। ऑल राइट, चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश
दिया जा रहा है। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहां पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहां पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं, और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको Yesterday, the DGISPR came out with a press conference, and while you have been continuously providing satellite images and proofs, undeniable proof really, of the airstrikes that happened and the damage that is caused, there's no evidence coming in from the other side. What do you think is there? Are they trying to bluff their people? Are they trying to build some kind of a propaganda for the anger that domestically is there in Pakistan? And secondly, related question, you mentioned Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Toiba terrorists. The brother of Maulana Masood Azhar, Rauf Asghar, who was killed. Pakistan DGISPR is trying to build a propaganda where he's saying that Lashkar-e-Toiba, Rauf from Lashkar-e-Toiba was at the entire funeral, but he's saying that he's alive, and they're trying to confuse the people because the two names are similar. The Jaish chief, who is the brother of Maulana Masood Azhar, and the Lashkar guy who was with the Pakistan army at the funeral. So could you clarify what has really happened? Because there is a lot of propaganda and information warfare happening from the Pakistan side. Thank you. I think the first part of the question you have answered yourself. I need not delve more on it. Why they are doing what they are doing, information is not forthcoming from there. Obviously, that is expected, and they would do whatever it takes to assuage their people and minimize whatever information about the damage comes out. Here, I would like to clarify, as I said yesterday, our fight is with the terrorists. Our fight is not with the Pakistan military or Pakistan civilians. So that is very clear, and we are very clear in our targeting. So coming to the second part of your question as to what media or what propaganda spin the other side is trying to make out a story. Well, it is for them to answer, and it really is not a military question for us to answer here. We've done our job. We have done what we're expected to do, and that is it. I'll come this side, 249. सर, मैं पूनम पांडे हूँ, नवभारत टाइम्स से। पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें एक सेंटेंस उन्होंने यूज किया था कि दिस इज न्यू आर्ट ऑफ वॉर। तो हम सब ने देखा, शायद पहली बार देखा कि किस तरीके से आसमान में दोनों एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे। क्या आप बता सकेंगे, क्योंकि हम जो लगातार जब कवर करते हैं, हम देखते हैं 2016 में के बाद ड्रोन का जो पूरा वॉरफेयर में रोल है वो दिखा था, तो हमने भी वो दिखाया, और किस स्तर की ये वॉर थी? अगर थोड़ा आप क्लैरिटी दे सकें कि कितने एयरक्राफ्ट उनके इन्वॉल्व थे, लगभग कितने हमारे थे, क्या इसे अब तक का सबसे बड़ा जो जंग हुई है आसमान में वो कहा जा सकता है? और ड्रोन के रोल पे थोड़ा और ज्यादा, क्योंकि 2016 के बाद जिस तरीके से बढ़ा है। देखिए, जैसा मैंने कल कहा था कि इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफी कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होंगे। कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई, these are questions of technical details, which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share
to explain to you the way it needs to be explained. Suffice to say कि yes, ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था and it is bound to happen. हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी. हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं. हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं. सो इट इज अ कैट एंड माउस गेम एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी. So that is what is going to happen. So if you ask, was this different? Was this engagement different? Definitely it was different. And a lot of new aspects have come out, but we were prepared for it, we were trained for it, and we were equipped for it. That is the only aspect that I can share with you at this time. Thank you. Ladies and gentlemen, the last question, 161. Hi, sir. Thank you, sir. Snesh Philip here from the print. So the social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility. And there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. Ladies and gentlemen, thank you so much. As I said yesterday, as I said earlier and yesterday, it is difficult to take everybody's questions, and the DGMers have to reach somewhere right now. So thank you for coming. Please send in your questions on paper. We will definitely answer them. Thank you. तो बिल्कुल आपको बता दें कि तीनों सेना के प्रमुखों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी. बारी बारी से उन्होंने अपने जो है उसके बारे में बताया. एयर मार्शल का कहना है कि हमारी लड़ाई आतंकियों से थी, पाकिस्तानी सेना ने इसे अपना बना लिया है, नुकसान के लिए वही जिम्मेदार है. हमें एक जॉब दी गई, हमने उसे पूरा किया है. वहीं एयर मार्शल भारती ने कहा कि भय बिन कोई भी प्रीत नहीं होती है. तो आपको बता दें सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे. पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की. आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी. एयर मार्शल भारती ने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ नहीं है. पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों का साथ दिया तो हमने उसका जवाब दिया है. तो इसके पहले आपको बता दें कि रविवार शाम 6:30 बजे इन्हीं अफसरों ने 1 घंटे 10 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई की शाम 5 बजे संघर्ष विराम हुआ था. तो एयर मार्शल भारती ने कहा कि हम कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं. ये पहले से ही हम सोच रहे थे कि वे अपनी जनता को जानकारी नहीं दे रहे हैं. पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ अपनी जनता को जानकारी नहीं दे रहे हैं. हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है. पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो अपनी कहानियां बनाए. हमें एक जॉब दी गई, हमने उसे पूरा किया. और उन्होंने ये भी बताया कि जो ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं वो तुर्की के ड्रोन थे. दिनकर की कविता से इसकी शुरुआत की गई. संदेश पर रामचरित मानस याद दिलाऊंगा. उन्होंने आगे कहा कि समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी है. टर्किश ड्रोन हो या कहीं के भी ड्रोन हो, हमने दिखा दिया है कि किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का सामना करने के लिए हम तैयार हैं. उन्होंने ये भी कहा है कि हम ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि सभी मिलिट्री बेस सिस्टम ऑपरेशनल है और नए मिशन के लिए हम तैयार हैं. तो
अगली लड़ाई अलग तरीके से लड़ी जाएगी, ऐसा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। तो एयर मार्शल भारती बोले हैं कि जैसा मैंने कल कहा था कि कितने जहाज थे, किस तरह की लड़ाई थी, ये तकनीकी डिटेल्स के सवाल है। हम जितना एक्सप्लेन करना था, हमें जितना एक्सप्लेन करना था हम कर चुके हैं। इस लड़ाई को इस स्वरूप में होना था, अगली लड़ाई अलग तरीके से लड़ी जाएगी। हर लड़ाई एक तरह से नहीं होगी, हमें बस उनसे आगे रहना है। ये अलग तरह की लड़ाई थी, कई और तरह की लड़ाई सामने आएगी और हम इस चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातों बातों में ही इशारा दिया गया है कि हम अब भी पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है। तो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एयर मार्शल बोले हैं कि हमारी लड़ाई आतंकियों से थी, पाकिस्तानी सेना ने इसे अपना बना लिया। नुकसान के लिए पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर फोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर फिर से एक बार जानकारी दी है। तो एयर मार्शल भारती ने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ नहीं है। पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों का साथ दिया तो हमने उसका जवाब दिया। नुकसान के लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो उन्होंने ये भी कहा कि कितने जहाज थे, किस तरह की लड़ाई थी, ये तकनीकी डिटेल्स के सवाल हैं। हम जितना एक्सप्लेन करना था हम कर चुके हैं। इस लड़ाई को इस स्वरूप में होना था, अगली लड़ाई अलग तरह से लड़ी जाएगी। हर लड़ाई एक तरह से नहीं होगी, हमें बस उनसे आगे रहना है। ये अलग तरह की लड़ाई थी, कई और तरह की लड़ाई सामने आएगी और हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो हम भविष्य में हर ऑपरेशन के लिए तैयार है। सेना की तरफ से ये कहा गया है। पाकिस्तान को भारतीय सेना की चेतावनी भी है ये एक तरीके से कि भय भिन्न ना हो प्रीत, भारतीय सेना ने ये कहा है। हम भविष्य में हर ऑपरेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो पाकिस्तान को भारतीय सेना की तरफ से एक तरीके की ये चेतावनी है कि अगली लड़ाई अलग तरीके से लड़ी जाएगी। एयर मार्शल भारती ने ये भी कहा कि पाकिस्तान कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, ये हमें पहले से ही सोच रखे थे। वे अपनी जनता को, यानी कि पाकिस्तान जो है वो अपनी जनता को जानकारी नहीं दे रहे हैं और हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो अपनी कहानियां बनाए। हमें एक जॉब दी गई थी, हमने उसे पूरा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, दिनकर की कविता से शुरू किया गया। संदेश पर रामचरितमानस भी याद दिलाऊंगा। तो हमारे साथ कुंवर जेपीएस चौहान जी जुड़ चुके हैं। जेपीएस चौहान जी, सबसे पहले आईएनएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है ये, हमारे दर्शकों को हम बता दें जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएस में। धन्यवाद। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे, लगातार दूसरी बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। कल 1 घंटे 10 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अभी भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरीके से अगर देखें तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि अगली लड़ाई इससे अलग तरीके से लड़ी जाएगी और अगर भविष्य में भी कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार है। आपसे समझना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। हमने अपनी सेनाओं को विड्रॉ नहीं किया है, लेकिन क्योंकि हमको मालूम है पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहले वो किया है, हमने उसको विड्रॉ नहीं किया है। तो जो मैं इसको एनालिसिस कर रहा हूँ इस पूरे उसको कि फॉर सम टाइम हमारी फौजें इसी तरीके से एब्सोल्यूट रेडीनेस में रहेंगी और स्थिति को भापेंगी। उसके बाद में अगर इसके बाद डी एस्केलेशन जो है वो काफी कुछ समय उसमें लगेगा, एकदम हम अपनी फौजों को भागे रिट्रीट नहीं करेंगे। हमारा ध्यान रहेगा अगर पाकिस्तान कोई इस तरीके की हरकत करता है या कोई आतंकवादी वहां के संगठन जो हमारी बातचीतें हुई हैं उसके मुताबिक अगर चीजें नहीं जाती है
तो हमने पहले ही कह दिया है हमारी सरकार ने कि अगर कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। और जहां तक ये कहा गया है कि हम अब लड़ाई उस तरीके से नहीं होगी, लड़ाई दूसरी तरीके से होगी, जो आपने अभी कहा वास्तव में सही है। इसी बार ही बहुत कुछ हो चुका होता, लेकिन शुरू में जो हमने कहा था कि भाई हमारा जो है लक्ष्य सिर्फ आतंकवादी सरगनाओं को खून के आंसू बहाना है, जो हमारे लोगों को उसने 26 लोगों का दुखद अंत करके, बड़ा क्रूरता अंत करके हम लोगों को जो खून के आंसू बहाए थे, हमको उसका ठीक तरीके से माकूल जवाब देना, जो हमने उसका दे दिया। एस्केलेटरी वॉर हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य जो था वो ये नहीं था कि हम किसी मिलिट्री टारगेट या सिविलियन टारगेट को, लेकिन हमें उकसाया गया हमारे ऊपर करके, तो हमने मिलिट्री टारगेट भी हमने तबाह करे। लेकिन अगली बार अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए हम उसके समूल नाश के लिए अच्छी तरीके से तैयार हैं। जी बिल्कुल। आपसे एक और चीज समझते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले राष्ट्रकवि रामधारी जी की एक कविता की याचना नहीं अब रण होगा, ये दिखाई गई थी, तो किस तरीके का संदेश इसे माना जाए? हाँ वही है कि ये नहीं होगा, ठीक है। फिर वो जो मैंने आपको पहले भी कविता सुनाई थी कि बहुत हुआ अब शक्ति को मंदिर से बाहर आने दो, पाकिस्तान में भोले शंकर को तांडव नृत्य दिखाने दो, फड़क रही हैं बाहें अब तलवार हमें उठाने दो, अभिमानी दम्भी दुश्मन का शीश हमें गिरा दे। ये जो कविता मैंने उसमें लिखी थी कारगिल है, इसका प्रैक्टिकल होगा। और हमारी फौजों के अंदर पूरा जोश है, हमारी जनता के अंदर पूरा जोश है, और सौभाग्य से सभी हमारी राजनीतिक पार्टियों ने जिसे सपोर्ट किया। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व पॉलिटिकल है उसके सही निर्णय के लिए कि जो हमने पाकिस्तान कार्रवाई करी और उन्होंने कार्रवाई के लिए फौजों को आजादी, मैं साधुवाद देना चाहता हूं उनके इस निर्णय को। हम इससे भी ज्यादा आगे अच्छी तरीके से पाकिस्तान का सर्वनाश के लिए शंकर तांडव नृत्य दिखाएंगे। जी बिल्कुल। आपसे ये भी समझते हैं कि आप पाकिस्तान, ऐसा लगता है, ऐसा माने कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज आ सकता है, क्योंकि सीज फायर हुआ, समझौता हुआ, युद्ध विराम को लेकर समझौता हुआ, लेकिन उसके महज कुछ ही घंटों बाद जो है उस सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान दिखाई दिया था। हालांकि स्थिति अब हर जगह जो है वो काफी ज्यादा शांत है, काफी ज्यादा सामान्य है, लेकिन पाकिस्तान पर कितना भरोसा किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कुत्ते की दुम है जो कि 100 साल भी अगर जमीन में गाड़ के रखो टेढ़ी रहेगी, क्योंकि उसकी एक मजबूरी है। उसकी मजबूरी है एक आतंकवादी संगठन जो उसने पाले हुए, पहले उन्होंने ही उनको पाला, और आज वो जो है सरकार सिर्फ आतंकवादी संगठन और वहां की सेना उसको चलाती है। तो आतंकवादी संगठन अगर इस बात पे जो हमारी संधि हुई है कि कोई भी आतंकवादी गतिविधि में पाकिस्तान जो है अपना कोई भी समर्थन ना देगा, ना कोई सहयोग करेगा, अगर ये बात होती है तो वहां के जो आतंकवादी संगठन है उनकी दुकानें तो बंद हो जाएंगी जी। तो वो जरूर एक बात होगा, या तो पाकिस्तान के अंदर अभी विद्रोह होगा उनके द्वारा। सरकार के इस फैसले से वो पूरी तरीके से नाखुश है, तो वो अपनी बात मनवाने के लिए सरकार को हर तरीके से झुकाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अगर सरकार दूसरी बात क्या है, सरकार वहां पे बलशाली नहीं है। अगर एक तरफ से और देखा जाए कि हालांकि ISI प्रायोजित हैं ये सारे आतंकवादी संगठन, लेकिन धीरे 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 आतंकवादी संगठनों ने भी अपना इस तरीके से कर लिया है कि सेना भी उनकी बोली बोलती है। अगर वो नहीं बोलेंगे तो उन्हीं के तैयार किए हुए उनके शीर्ष नेतृत्व को किस दिन खत्म कर दें, ये भी कोई वो नहीं। तो वो भी इस तरीके से डरे हुए हैं। तो अब देखता है, हमें वेट एंड वॉच वाली हमारी स्थिति है कि हम उसको देखें, लेकिन विश्वास की बिल्कुल हम गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान ने आज तक जितना भी हुआ, जितनी भी ट्रीटीज हुई, जितने भी अपने वो किया, हर बार पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, हमारी पीठ पे खंजर मौका। तो अब हम इस बार सचेत हैं, हम सो के नहीं कर रहे कि हम सोए हुए कि ठीक है हमारी ट्रीटी हो गई, ये हमारे एक दूसरे की तरफ से वायदे हो गए, हम आगे उस पर हम जो है सचेत हैं। दुश्मन की हर एक चीज पे हम निगाह रखे हुए हैं, और दुश्मन ने अगर कोई इस तरीके की कार्रवाई करी भारत के विरुद्ध,
तो उसका जवाब देने के लिए अब उसको अच्छी तरीके से समझ जाना चाहिए। और एक और फायदा इसमें यह है कि जो हमारा विश्व समुदाय है, दूसरी जो कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज भारत की आज प्रशंसा कर रही हैं, भारत के आगे नतमस्तक हैं, भारत का जो डिसीजन उसके आगे नतमस्तक है, सहनशीलता के आगे नतमस्तक है, प्रोफेशनलिज्म, मिलिट्री प्रोफेशनल्स के आगे नतमस्तक है। और पाकिस्तान ने अगर कुछ किया तो इस बार तो सिर्फ आपने देखा एक ही विश्व समुदाय फिर इकट्ठा होकर हिंदुस्तान के सपोर्ट में ही रहेगा। बिल्कुल। चौहान जी, एक और चीज है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस ब्रीफिंग जो हम सुन रहे थे उसमें ये बात भी निकलकर सामने आई कि पाकिस्तान जो है वो अपनी जनता को सही जानकारी और पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। अब पाकिस्तान, सवाल खड़ा ये भी होता है कि पाकिस्तान आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, अपनी जनता से सारी चीजें वो क्यों छुपा रहा है, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तानी जनता को जो बेवकूफ बना रहे हैं वो लोग, वो ये है कि अगर ऐसा ना करें तो उन्हीं की जनता सच वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस है, भुखमरी फैली हुई है, लोग त्राई मची हुई है, तो उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि भाई हमने देखिए हिंदुस्तान के साथ इस तरीके से कर दिया कि हिंदुस्तान की बत्ती बंद हो गई, हिंदुस्तान को हमने बर्बाद कर दिया, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को कर दिया, उनके जहाज गिरा दिए, हमने इस तरीके से बदला लिया जो उन्होंने ऐसे, उन पर सब चारा क्या है? खिसियानी बिल्ली खम्माई नोचती है जी। अब वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक तो भुखमरी में लोग मर रहे हैं, असंतोष है, सरकार को गाली ना सिर्फ जनता दे रही है, उनके जो सांसद हैं वो खड़े होके और सरकार को गाली संसद के अंदर दे रहे हैं। अगर वो ऐसा ना करें, झूठी अफवाहें ना फैलाएं, तो जनता का भी आक्रोश इस तरीके से हो जाएगा कि वो किस वक्त, पहले भी एक बार हो चुका है, इमरान खान के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने जो थे उनके मिलिट्री शीर्ष नेतृत्व के घर में जाके चारों तरफ से उन्होंने सब लूटला ले गई है। तो एकदम इस तरीके का उनके सैलाब आएगा जिसके अंदर की पॉलिटिकल लीडरशिप और उनके जो मिलिट्री लीडरशिप है, दोनों के ऊपर पब्लिक का डायरेक्ट अटैक होगा। ये मैं चीज आगे देख रहा हूँ, इसलिए उनकी मजबूरी हो गई है अपने आवाम को झूठ फैला के ये समझाना। हाँ, बिल्कुल। तो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, प्रेस ब्रीफिंग में हमने वो तमाम चीज़ें सुनी भारतीय सेना की तरफ से। पूर्व रिटायर्ड जो है वो ग्रुप कैप्टन डॉक्टर कुंवर JPS चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम जो है वो चर्चाएं हमारे साथ की। चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी के लिए आपका।